Today we bring to you an important story from Karnataka's political arena. The last Muslim to have been the member of Lok Sabha representing the Muslim community was Iqbal Ahmad Saridgi in 2009. Before him it was C.K. Jafar Sharif who was defeated in the 2004 Lok Sabha elections. Many have pointed fingers at CM Ibrahim for his role in this outcome. But what's captured our focus is the prolonged absence of Muslim representation in Lok Sabha for nearly 15 years, sparking concerns within the community. Today, we stand witness to a community that is yearning for political representation, which has urged many social organizations and rights activists into taking action. Social rights activists have come together with an objective to pressurize the Congress party to allocate a more number of parliamentary tickets to Muslim candidates. In the recent assembly elections in Karnataka, Muslims played an important role in securing a majority for the Congress party, and this was publicly acknowledged by the senior leaders of Congress. The Muslim vote share exceeds to that of other major communities combined, including the Kuruba, Vokkaliga, Lingayat communities. In a move to intensify their demands, rights activists from different corners of Karnataka held a meeting in the state capital. Participants from Gulbarga, Raichur, Bidar, Dharwad, Haveri, Mangalore, Koppal, Hubli and Bagalkot came together for this strategic meeting. The meeting included data presentations shedding light on voting statistics and representation across diverse communities in Karnataka. The discussions revolved around devising effective strategies to ensure adequate representation for the Muslim community in the upcoming Lok Sabha elections. Their demand is for 3 seats for Muslim candidates from Bangalore Central, Bidar and Hubli Dharwad constituencies. The activists have raised important questions about whether the Congress party is providing adequate representation to the Muslim community. They argue that there is currently no Muslim leader who can effectively communicate the community's grievances to the High Command. To address this concern, they are demanding the allocation of 3 tickets to Muslim candidates by the Congress. Failure to do so, they warn, may lead to disappointment within the community and a decrease in votes for the Congress. Furthermore, activists have expressed their concerns regarding the exclusion of Muslim names from the MLC nominations. A representation in the parliament and assembly, that is very important to our community. Not only to our community, the beauty of the democracy is inclusiveness of all. मुसलमानों का भी और पिछड़े कम्युनिटी जो है उसको सबका इंक्लूसिवनेस करना. लेकिन इधर क्या हो रहा है, अभी एमएलए इलेक्शन में हम तो तय किया कांग्रेस को जिताना, बीजेपी को हराना. वो काम हुआ हमारा. जो वादा हम मन में किया था वो पूरी किया है. Even at the cost of JDS also in some constituencies we left them and we voted for Congress. So Congress is in power. But what Congress is now doing, whether they are giving true representation to the community, ये हम अभी सोचना अभी. और कांग्रेस का हालत ऐसा हुआ है, दी मुसलमान लीडरों कांग्रेस का अंदर जो लीडर्स है, दे आर वेरी गुड. आई नो दे आर वेरी गुड, दे आर हार्ड वर्कर्स, एवरीथिंग इज देयर. बट द क्वेश्चन इज हाईकमांड के सामने खड़े होके हमारा कम्युनिटी का क्या ग्रीवेंसेस है, क्या रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमारा आउटक्राई क्या है, इसके बारे में बात करने का वो उनको उतना ताकत नहीं है. So this is the time the intelligentsia within the community should talk on that. ये इंटेलिजेंसिया क्या होती है कम्युनिटी का अंदर, ये थोड़ा स्ट्रांग होना और ये बात को बहुत ऊंची आवाज़ से पार्टी का सामने रखने का ज़रूरत है. कांग्रेस को हम खुद वोट डाल के आज एक इख्तिदार में लाए. कांग्रेस का भी फ़र्ज़ बनता, बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता कि भाई वो भी जो है ना हमें ये सीटां जो है ना देना ज़रूरी है. अगर ये सीटें हमें ज़रूर नहीं मिलेंगे तो एक हमारे आवाम में एक नाराज़गी फैलेगी. तो 88% जो वोट असेंबली में जो मिला है इनको, वो जो है ना वोट कुछ कम होगा क्योंकि नाराज़गी बढ़ते जाएंगी. ये हमारा मुआवजा भी है और हमारा हक़ भी है. इसके अलावा देखिए 100 दिन निकल चुके हैं गवर्नमेंट फॉर्म होके और 6 MLC भी दे चुके हैं, जिसमें
कोई भी मुसलमान को नहीं दिया गया। ये नाहक है और ये नहीं चाहते और ये नहीं समझते क्या वजहात हैं कि मुसलमान इतने वोट देने के बावजूद भी कोई MLC मुसलमान को नहीं दी गई है। They firmly believe that the demand for 3 seats is a rightful one, emphasizing that it is about ensuring social justice. They want to see Muslims uplifted, particularly in areas with a significant Muslim population. The activists stress that they do not wish to see the Congress party disappear from the political arena due to neglecting minority communities. They urge the party to include them and move forward with the community's support. Otherwise, they say the party will face severe consequences in the future. क्या है, मुसलमान सिर्फ वोट देने के वास्ते नहीं है। क्या सोशल जस्टिस बोलने का एक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सोशल जस्टिस देने के वास्ते मुस्लिम जहाँ पर भी हाईएस्ट पॉपुलेशन है वहाँ टिकट देना बहुत ज़रूरी है और उनको अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र साचार रिपोर्ट, जस्टिस राजेंद्र साचार रिपोर्ट क्या बोलती है, मिनिमम 15% रिजर्वेशन मुसलमानों के वास्ते देना बोलकर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। लेकिन कहाँ देते हैं? अब रिजर्वेशन कहाँ भी नहीं। जिस जगह मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ भी टिकट नहीं दे रहे। जब तुम्हें मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो तुम्हें रिजर्वेशन नहीं दे रहे। एटलीस्ट टिकट दे के उनको जिताने का काम कांग्रेस पार्टी करना है और टिकट देने में भी कोताही करते हैं और टिकट दिए तो 100% वो जीते हैं। इस बार का माहौल जो गारंटी दी है कांग्रेस ने और जो 9 मेंबर्स जो ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं और जो माहौल आज का कांग्रेस का है हमारे स्टेट में, ये क्या बताती है कि 100% अगर हमें 7 टिकट भी डिमांड करके 7 के 7 भी टिकट मुसलमान को दिए तो 100% 7 आदमी भी जीतने के चांसेस है। अब कर रहे हैं हम ये समझते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो नॉमिनेशन से नहीं होता है। नॉमिनेशंस पार्टी की जानिब से होते हैं और कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट उस तरीके से नहीं करते हैं जो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करके किया जा सकता है। अब हम लोगों ने जो तय किया है वो हम लोग 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी इस बार इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाए, ये हम लोगों का मुतालबा है। और इसके सिलसिले में हम लोग कई सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कन्वेंशंस करने वाले हैं और तमाम तर कम्युनिटीज़ को साथ में जोड़ने की भी हमारी कोशिश रहेगी। और ये जिम्मेदारी उन पर भी पड़ती है जो पार्टी है कि वो लोग इस बार सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इस बार सही से मौका दें मुस्लिम कम्युनिटी को। हिंदुस्तान में अभी भी सेकुलर वैल्यूज़ बाकी है, सेकुलर लोग भी बाकी हैं। जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को पिछले 15 सालों से डिसएनफ्रेंचाइज करने की जो सिस्टमेटिक कोशिश की जा रही है उसको वो नाकाम करने के लिए हमारा साथ भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे OBCs के साथ भी होगा, ये जानकर वो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त जो चल रहा है वो मुहिम है। हम इस मीडिया के थ्रू कांग्रेस को ये साफ वाज़े तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ये मुहिम है। अगर अभी से कांग्रेस सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो ये मुहिम तहरीक में बदल जाएगी। जब तहरीक में कोई चीज़ बदल जाती है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू रिवीव इट फॉर द नेक्स्ट 1 डेकेड। ऐसा हम पिछले दिनों में देख चुके हैं, कई बार ऐसा हो चुका है। जो बहुत बोलने वाले लोग थे वो लोग वैनिश हो चुके हैं, पॉलिटिकल अरीना से जो है वो वैनिश हो चुके हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है आज तक उसका खामियाजा भुगत रही है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस जैसी सेकुलर जिसके आइडियोलॉजी है वो पार्टी वैनिश हो जस्ट बिकॉज माइनॉरिटी को इग्नोर करके। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर देम टू इग्नोर अस एंड गो अहेड इन द पॉलिटिक्स। दे कैन इंक्लूड अस, दे कैन मेक अस अ पॉलिटिकल पार्टनर्स एंड मूव अहेड। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। Now it is to be seen whether the efforts of these social organizations and the rights activists help in the comeback of Muslim representation in the Lok Sabha.